Good morning, students. So, in class, we have started a new chapter, that is our third chapter, Human Heritage, and that chapter is related to our previous two chapters. So, what's common in these three chapters? The word heritage. So, first, we will just revise these thing. Heritage. What is that? Something that we inherit from the past. Whatever we things we get from the past comes under heritage, whether it is something that is exist in physical form, whether the rituals and customs we practice today, whether it is the person who is contributing towards her country. ठीक है, तो heritage क्या है? Anything which we get from the past. So in the first chapter we read about material heritage. Material heritage में हमने क्या देखा? We read about the monuments, sculptures, paintings. ठीक है, जैसे ताजमहल इन आगरा, गोलकोंडा फोर्ट, Mysore Palace, St. Cathedral Church. All these things we have already read in chapter 1. Then in second chapter we read about non-material heritage. In that thing we read the rituals, customs we follow. Every state has its own dance form, the dress they wear, food they eat, the things they do on different festivals, occasions, right? So those things which we get to know from past comes under non-material heritage. So third chapter, that is your human heritage. Human heritage में what there are famous personalities, those who have contributed इन द कंट्री, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस काम किया है और कंट्री की डेवलपमेंट करी है. इन द क्लास वी हैव प्लेड बोर्ड गेम एज वेल, राइट? कि बोर्ड गेम में यू हैव टू गेस द नेम्स ऑफ दीज फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड यू विल टेल दैट वाई दीज पर्सनैलिटीज़ आर famous. So let's start with the chapter. On the first page it is given board game only. Then there are new words which we as usual do at the last of the chapter. Then our chapter starts from page 46. So Indian scholars, right? वी हैव रेड कि इंडिया हैज़ अ रिच कल्चर. इंडिया में बहुत वैरायटी के लोग रहते हैं. दे फॉलो डिफरेंट थिंग्स, दे ईट डिफरेंट, दे वियर डिफरेंट, देयर डांस फॉर्म्स आर डिफरेंट, देयर सेलिब्रेशंस आर डिफरेंट. ऑल थिंग्स वी हैव रेड. इंडिया हैव अ वैरायटी ऑफ ग्रेट मोनूमेंट्स, कल्चर्स एंड एवरीथिंग. But it is not only the things India is having, but also the great personalities. Great thinkers are there, philosophers, scientists, economists, mathematicians and poets. They are also the part of India. ठीक है, तो we will read about some of the famous Indian scholars. Who are scholars? Those who have done marvelous job in their particular field. Suppose I am a mathematician and I am doing a lot of research in mathematician. I am coming up with the new things. I am contributing in my country's development. So I will be called as a scholar. ठीक है, तो फर्स्ट स्कॉलर के बारे में वी विल रीड, दैट इज़ गार्गी वचकनवी. ये कौन थे? ही वॉज अ फिलोसोफर जो कब रहते थे 3000 ईयर्स अगो. एंड किस किंग के अंडर काम करते थे? इन दी किंग जनाका. एंड इन्होंने क्या है, एक संत थे जिनका नाम था यज्ञवल्क्य. उनको क्या है, चैलेंज किया था विद हिज फिलोसफिकल क्वेश्चंस. अपने क्वेश्चंस के साथ इनको चैलेंज किया था. और ये फेमस क्यों है? इन्होंने बहुत सारा हाइम्स बनाए थे. हाइम्स मीन्स मंत्र. और एक बुक भी लिखी थी, दैट इज़ गार्गी संहिता. देन सेकेंड है हमारा चाणक्य कौन थे? ही वॉज एन एडवाइज़र टू एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइज़र थे. चंद्रगुप्त मौर्य अगर कोई भी चीज़ करते थे वो चाणक्य से पूछ के करते थे. एंड 2300 ईयर्स अगो ये रहते थे पहले. देन चाणक्य की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो पावर में आए हैं. उन्होंने अपना किंगडम चलाया है. उन्होंने चाणक्य ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भी टीच किया है. 2 बुक्स भी लिखी हैं. कौन सी? अर्थशास्त्र एंड नीतिशास्त्र. अर्थशास्त्र में ही हैज़ रिटन अबाउट दैट हाउ मनी शुड बी यूज. पैसे को कैसे यूज़ करना चाहिए. हाउ शुड बी मेंटेन रिलेशंस विद अदर पीपल. कैसे लोगों के साथ, फॉरेन के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए. देन ही हैज़ ऑल्सो told us about
वॉर स्ट्रेटजीज, अगर कोई युद्ध लड़ रहे हो तो विच स्ट्रेटजीज वन शुड फॉलो। तो ये सारी चीज़ें कौन सी बुक में है? अर्थशास्त्र। दूसरी है आपकी नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में ही हैज़ टोल्ड अस अबाउट आइडियल इंडियन वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर एन इंडियन, हाउ शुड यू स्पेंड योर लाइफ। इस चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है। ही इनको सिर्फ इतना सब नहीं पता था, बल्कि ही वॉज वेल वर्स्ड विद इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के बारे में और एस्ट्रोनॉमी, इन चीज़ों के बारे में भी इनको पता था। तो हेयर इज़ द प्रैक्टिस जोन 1 विच वी विल डू एट द एंड ऑल्सो, एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट बुक रिटन बाय गार्गी वॉज गार्गी संहिता। और कौन सी चाणक्य की बुक में आइडियल इंडियन वे ऑफ लाइफ के बारे में आया है? दैट इज़ नीति शास्त्र। देन आगे है हमारे आर्यभट्टा। हु वॉज दैट? ही वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्टा कौन थे? फेमस मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। ही यूज टू लिव बिफोर 1500 ईयर्स अगो। बहुत सारी बुक्स इन्होंने मैथ्स के ऊपर लिखी हैं, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी लिखी हैं। कौन सी मेनली इनकी फेमस है? आर्यभट्टिया। इसके बारे में आप हायर क्लासेज में भी पढ़ोगे दैट आर्यभट्टा हैज़ रिटन आर्यभट्टिया। उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है? मैथ्स का भी है, एस्ट्रोनॉमी का भी है। ही वॉज द ओनली वन, सबसे पहले यही थे जिन्होंने बताया था कि जो अर्थ है दैट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ खुद भी क्या है? घूमती है। ही एक्सप्लेन्ड दैट द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ स्टार्स अक्रॉस द स्काई वॉज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ अर्थ्स मूवमेंट। इफ़ यू सी समथिंग मूविंग, दैट इज़ नॉट दैट थिंग इज मूविंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अर्थ्स मूवमेंट। ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमने पढ़े हैं ना कि सन के बाद इट इज़ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इनके बीच के डिस्टेंस के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। ही सेटअप एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी नियर पाटलिपुत्र इन प्रेजेंट डे बिहार। इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थिंग भी क्या है? सेटअप करी थी। कहाँ? पाटलिपुत्र, जिसको आज के टाइम पे हम पटना बोलते हैं, वो वहाँ पे। ठीक है, तो आर्यभट्टा कौन थे? ही वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। उसके बाद है हमारे कबीरदास। कबीरदास कौन थे? एक संत थे, ये एक पोइट थे। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना कबीर के दोहे, अगर नहीं पढ़ा तो आगे आ जाएंगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही वॉज बॉर्न अराउंड 1440। ठीक है, 1414 के नियर अबाउट इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अडॉप्टेड बाय मुस्लिम वीवर फैमिली ऑफ नीरू एंड हिज वाइफ नीमा। एक जो कपड़े सिलने वाली, बुनाई करने वाला एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, नीरू और नीमा, उन्होंने इनको क्या है? कबीरदास को अडॉप्ट किया था। कहाँ? वाराणसी में। कबीर कुड नॉट राइट, देयरफॉर एक्सप्रेस्ड हिज पोएम्स ऑरली। वो लिख नहीं पाते थे, दैट इज़ वाई वो बोल के ही अपनी पोएम्स को एक्सप्रेस करते थे। हिज वर्सेस एंड कपलेट्स और दोहा आर स्टिल पॉपुलर। इनकी कही हुई बातें, इनके जो दोहा हैं वो आज भी क्या है? फेमस है। ही वॉज अ संत एंड टायरलेसली प्रीच्ड हार्मनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये एक संत थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या है? कोशिश करी है, मेहनत करी है हिंदूज और मुस्लिम के बीच में पीस बनाए रखने के लिए। ही स्ट्रांगली अपोज्ड रिलीजियस रिचुअल्स एंड बिलीव्ड इन वन गॉड। अभी हम क्या है? हम अलग अलग क्या है? धर्म को क्या है? फॉलो करते हैं। दैट इज़ वाई वी फॉलो डिफरेंट रिचुअल्स। हमारे यहाँ ऐसा होता है, किसी के क्या होता है, किसी के क्या। इनको, कबीरदास को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, ये इसको अपोज करते थे और कहते थे कि भगवान एक ही है, उसमें विश्वास रखो। सम ऑफ हिज वर्क आर इंक्लूडेड इन द हॉली बुक ऑफ द सिक्स गुरु ग्रंथ साहिब। जो सिखों की होली बुक है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर भी कबीरदास के क्या है? कुछ कुछ फेमस बातें लिखी हुई हैं। तो कबीर कौन थे? ही वॉज अ संत एंड अ पोइट। उसके बाद हैं आपके तानसेन। तानसेन वॉज अ ग्रेटेस्ट सिंगर्स कंपोजर्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के क्या है? सिंगर भी थे, कंपोज़र भी थे, बनाते भी खुद थे गानों को, गाते भी खुद थे। कहाँ पे बॉर्न हुए? ग्वालियर में। कब? 600 ईयर्स अगो, पहले। वो सिर्फ सिंगिंग में ही एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि ही वॉज ऑल्सो फेमस फॉर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। उनको इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छे से बजाना आता था। ही वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स। एक मुग़ल एम्परर था अकबर, उसके क्या है? ये 9 रत्ना, एक तरह से क्या है आप कह लो, 9 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स थे अकबर के पास, उसमें से ही इज़ वन ऑफ देम।
ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल मियान, इनको अकबर की तरफ से मियान का टाइटल मिला था. इट इज़ बिलीव्ड दैट ही वॉज सो इम्पैक्टफुल एज अ सिंगर दैट हिज रागा दीपक कुड लाइट लैम्प्स, रागा मेगा मल्हर कुड ब्रिंग डाउन रेन. ये इतने ज़्यादा फेमस थे कि इनका ऐसा माना जाता था कि अगर वो दीपक रागा गाएंगे तो लाइट्स चल पड़ेंगी, और रागा मेगा मल्हर गाएंगे तो क्या है, बारिश भी आ जाएगी. इतना बिलीव था लोगों का. अ म्यूज़िक फेस्टिवल इज़ हेल्ड एट तानसेन्स टॉम्ब इन ग्वालियर एवरी ईयर. आज भी क्या है, तानसेन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हूम, तानसेन. इसके बाद here is a once again famous personality, that is मिर्ज़ा गालिब. Who was that? मिर्ज़ा गालिब का रियल नेम था मिर्ज़ा असदुल्ला बैग खान. ये क्या है, ये ही इज़ ऑल्सो अ फेमस पोइट. पोइट कौन है, जो पोइम्स लिखता है, पोइट्री. ठीक है. तो ये वही थे, बट कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे, उर्दू लैंग्वेज. कब बॉर्न हुए, 1797 में. कहाँ, आगरा में. पोइट कब बन गए थे, 11 की एज में. इन्होंने क्या है, किस मुग़ल किंग की कोर्ट में काम किया है एज अ पोइट, बहादुर शाह जफ़र, जो लास्ट मुग़ल रूलर थे. मिर्ज़ा गालिब ने कब काम किया है, मुग़ल किंग बहादुर शाह जफ़र की कोर्ट में. बहुत सारी जो इनकी पोएम्स हैं वो एज अ गज़ल्स परफॉर्म्ड की गई हैं. उन्होंने लेटर्स लिखे थे जो फेमस हो गए थे उर्दू लैंग्वेज में. गालिब हैज़ इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ उर्दू पोइट्स. जितने भी उर्दू पोइट्स हैं उनको गालिब इंस्पायर करते हैं. एंड इनके काम को रिप्रेजेंट करने के लिए ईवान ए गालिब इंस्टीट्यूट्स भी खोला गया है. कहाँ पे, दिल्ली में. अ फिल्म 1954 एंड अ टेलीविज़न सीरियल 1988 हैव बीन मेड ऑन द लाइफ ऑफ मिर्ज़ा गालिब. मिर्ज़ा गालिब की लाइफ पे क्या है, एक मूवी भी बनी हुई है, एक टीवी सीरियल भी बना हुआ है. तो आज का जो लास्ट का हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट सावित्री बाई फुले. कौन थी, कब बॉर्न हुई थी, 1831 में. कहाँ, नाई गांव, महाराष्ट्र में. देन शी वॉज अ सोशल वर्कर हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. ये कौन थी, इन्होंने वुमेंस के एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया था. ये एक सोशल वर्कर ज्योतिराव फुले की वाइफ थी. ये लोअर कास्ट को बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा है. इनको स्कूल जाना अलाउड नहीं था, पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था. तो ये क्या है, अपनी हिम्मत के साथ सामने आई. इन्होंने अपनी मैरिज के बाद एजुकेशन कंप्लीट की, गर्ल्स को टीच करना शुरू किया. ये पहली हेड मिस्ट्रेस बनी थी स्कूल की. जो फर्स्ट स्कूल ओपन हुआ था कहाँ, पुणे में. ठीक है. और ये प्लेग पेशेंट्स को सर्व कर, शी डाइड वाइल सर्विंग प्लेग पेशेंट्स ड्यूरिंग एन एपिडेमिक. जब एपिडेमिक आया था उस टाइम पे जो प्लेग के पेशेंट्स थे उनकी सेवा करते करते इनका भी, ये भी क्या है, इनकी डेथ हो गई थी. काव्या फुले, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सावित्री भाई फुले's पोएम. सावित्री भाई फुले ने पोइम्स भी लिखी थी जिसका नाम था काव्या फुले. कब पब्लिश हुई थी, 1854 में. गवर्नमेंट ऑफ India honored her by publishing a postage stamp featuring her on 10th March 1998. Thank you so much. Rest of the chapter we will cover in next video. Thank you so much. Bye bye.